हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई थिंक ये यूनिट का लास्ट है कि जिसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था कि टाइप्स ऑफ फीडिंग, उसी का अगेन एक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं जो कि है रेलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लेट्स फास्ट फास्ट थोड़ा समराइज कर देते हैं लास्ट लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीपाथ चैनल मतलब फेडिंग देखा था हमने कि ये फेडिंग क्या चीज़ होता है। तो फेडिंग यू कैन से दैट इट्स वन टाइप ऑफ लॉस के ये एटेन्यूएशन के जैसा ही होता है फेडिंग। तो हमने इसको दो टाइम डिवीज़न और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न में हमने उसको डिवाइड किया था। So, according to time domain, we have flat fading and frequency selective fading. Okay, based on a delay spread and Doppler spread. ठीक है, फास्ट फेडिंग एंड स्लो फेडिंग और फ्लैट फेडिंग एंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग। तो ये चारों के लिए हमने क्या क्या, ये स्मॉल स्केल फेडिंग है। दे आर ऑल स्मॉल स्केल फीडिंग। इसका मतलब है कि जनरली इसका यूज़ हम करेंगे इंडोर कम्युनिकेशन मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ये आउटडोर के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्मॉल स्केल फीडिंग। तो क्या होता है फ्लैट फीडिंग, क्या होता है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग, क्या होता है फास्ट फीडिंग एंड स्लो फीडिंग, ये चार चीज़ों हमने देख लिया था। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। नाउ we try to understand this feeding in other terms like now let us try to summarize the feeding classification. Please note that we have put four components: the flat slow fading scenario, the fast flat fading scenario, the frequency selective slow fading scenario, and the frequency selective fast fading scenario. Since the coherence bandwidth and coherence times are orthogonal and are independent of each other, they have nothing to do with each other and influence to each other because they are independent of each other. I can have a combination of flat fading versus slow fading versus frequency selective fading and slow fading frequency selective slow fading. ये चारों को हमने एक अलग अलग चार यूनिट से हमने उसको कंपेयर किया है। There are only a link which can be mentioned before is a TS. इसको हम अगर डिवाइड करना चाहे तो एक ही लिंक है, that is TS. Now if on the axis if I am putting TS, so other axis will be TC. Okay, ये TS और TC क्या है, you know already very well. TC क्या है, it's a coherence time. Okay, और TS है हमारा actual signal time. ठीक है, एंड सिग्मा टाउ है हमारा RMS डिले स्प्रेड। ओके, सो RMS डिले स्प्रेड दैट इज सिग्मा टाउ, TC एंड TS। ये तीनों के लिए हम मेनली ये चार को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियरली दिस आर ऑल फीडिंग सिनारियोज एंड विल रिक्वायर वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीडिंग काउंटर मेजर्स टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ फीडिंग. Okay, they are used to overcome the effect of feeding. So if you are a frequency selective environment, then you have to use frequency diversity technique because they are useful if you are following frequency selective slow fading and frequency selective fast fading. But if you are working in a flat fading scenario, like flat slow fading, flat fast fading, then time diversity techniques may be useful to you to remove this fading effect. Okay, so according to symbol period TS we have divided into a 4 categories. Okay, ये समझ में आ गया, that is according to the transmitted symbol period. Okay, now next, according to the transmitted baseband signal bandwidth we can further divide into these 4, but here the terms are different. Okay, here the terms are BC and BS. Okay, what is BS? BS will represent the bandwidth of the signal. Again, 4 quadrants are there, but the lines that we draw is as compared to BD. What is BD? It's the maximum Doppler spread, that is BD, and BC is a coherence bandwidth. Okay, ये सब पैरामीटर समझ में आ गया आपको?
since BD and the coherence time, that is BC, and the RMS delay spread, that is BS, are inversely related. They are inversely proportional to each other. We have this fourth scenario again. Okay, whenever you want to look into a form of frequency domain perspective or time domain perspective, you have this 4 times combination passes. Clearly you can close to this gray region where it is somewhat in between fast and slow fading, or a frequency selective versus frequency flat fading. ग्रे रीजन जो इंडिकेट कर रहा है, दे आर लाइन्स, नॉट क्लियर डेमोक्रेसीज, इट इज नॉट अ ब्लैक एंड वाइट सिनारियो. Okay, so understand what I want to say. According to the transmitted baseband signal bandwidth, we are divided into 4 quadrants, that is frequency selective fast fading, frequency selective slow fading, flat fast fading, and flat slow fading. Okay, so like this we can divide our fading into a different manner, into a different quadrants. Okay, understand? नाउ फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, जो हमारा मेन यूनिट है जो हमने आज पढ़ने वाला है. इट डिस्क्राइब्स हाउ द रिसीव्ड सिग्नल एम्पलीट्यूड चेंजेस विद द टाइम. फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या डिस्क्राइब करता है? रिसीव्ड सिग्नल, हमारा एम्पलीट्यूड है रिसीव्ड सिग्नल का, वो अकॉर्डिंग टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है. ओके, दैट इज वी कैन अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग द फेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन. Remember that the received signal is combination of multiple signals arriving from a different direction, phases and amplitude. अभी ये फीडिंग जो मेन हम स्टडी कर रहे हैं, फीडिंग का कंसेप्ट ही आया था, वो यही था कि हमें कभी भी डायरेक्टली ट्रांसमीटर और रिसीवर वायरलेस कम्युनिकेशन में डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट नहीं मिलता है. तो ट्रांसमीटर जो भी रेज ट्रांसमिट करेगा वो बाय रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये 3 टेक्निक की वजह से अलग अलग ऑब्जेक्ट थ्रू स्कैटर होके जाएंगे और फाइनली रिसीवर तक पहुंचेंगे. तो रिसीवर तक जो ये रेज पहुंच रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड, उनके फेजेस और उनकी डायरेक्शन सब अलग अलग होगा. ओके, विद द रिसीव्ड सिग्नल वी मीन द बेस बैंड सिग्नल, नेमली द एनवेलप ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल, दैट इज गिवन बाय RT. ओके, तो एट अ रिसीवर साइड जो हम सिग्नल फाइनली हमारे पास आने वाला है, जो अलग अलग सिग्नल, अलग अलग फेज, अलग अलग एम्पलीट्यूड का है, तो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? तो दैट इज यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस वन. RT इज इक्वल टू सिग्मा I to n minus 1 लिमिट अल्फा I एक्सपोनेंशियल ऑफ j थीटा I t tau. ओके, सो इट इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और कैसे और कितना चेंज होता है वो हम ये इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं कि भाई इतना चेंजेस आता है. ओके, इट्स अ स्टैटिस्टिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ मल्टीपाथ फीडिंग. ओके, ये कोई लीनियर कैरेक्टराइजेशन नहीं है, इट्स अ स्टैटिस्टिकल कैरेक्टराइजेशन. इट मीन्स इट मे बी चेंजेस, इट्स नॉट अ लीनियर, जो स्टार्टिंग में है वही एंडिंग में रहे, इट्स नॉट नेसेसरी. ये स्टैटिस्टिकल है, मतलब जितना जितना आपको रीडिंग मिलता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते जाओगे. दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल कैरेक्टराइजेशन. ओके, सो इन दिस फीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो समझने के लिए कि भाई कैसे आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा रिसीव्ड सिग्नल में कितना चेंज आ रहा है उसको समझना है, तो मेनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस 2 डिस्ट्रीब्यूशंस. First is Rayline distribution, or you can say that Rayline fading, or second one is a Raizen distribution, or you can say that it's a Raizen fading. Okay, both scientists are different, so they have given different logic with the different criteria, and according to that we have to understand, we will try to understand these 2 distributions, Rayline fading and Raizen fading. Understand? Okay, let me start with the Rayline and Raizen distribution. So what do you understand by Rayline distribution or Rayline fading, you can say that. So Rayline distribution describes the received signal envelope distribution for a channel. Envelope, अभी आगे हमने देखा कि what do you mean by envelope? Envelope means amplitude which changes with respect to time.
तो रे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द रिसीव्ड सिग्नल एम्पलीट्यूड फॉर चैनल व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉन लाइन ऑफ साइट। ओके, रे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली ज़्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है जनरली इन सिटी एरिया, कभी भी लाइन ऑफ साइट नहीं होता। तो लाइन ऑफ साइट जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मतलब नॉन एलओएस है, लाइन ऑफ साइट डायरेक्टली नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत काम आता है। टू अंडरस्टैंड द रिसीव्ड सिग्नल एनवेलप, रिसीव्ड सिग्नल एम्पलीट्यूड विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है रे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड वन इज राइजन डिस्ट्रीब्यूशन। It describes the received signal envelope distribution for a channel where one of the multipath component is line of sight. Okay? अगर आपको सब लाइन ऑफ साइट नहीं मिल रहे हैं सिटी एरिया में, ओके, लेकिन अगर सिर्फ एक चैनल आपको अगर लाइन ऑफ साइट मिल रही है, देन यू कैन हैव अ एग्जैक्ट कैलकुलेशन फॉर अ राइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि क्या होगा कि राइजन डिस्ट्रीब्यूशन तब काम आएगा जब आपके पास कुछ लाइन ऑफ साइट का रेफरेंस रहेगा। ओके, नॉन लाइन ऑफ साइट है तो आप डायरेक्टली रे लाइन से ही मालूम करोगे, और राइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेनली आपको सिर्फ एक चैनल एज ए रेफरेंस तो चाहिए। बाकी के सभी जो चैनल्स है वो डायरेक्ट नहीं है, नॉन लाइन ऑफ साइट है, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट वन चैनल शुड बी लाइन ऑफ साइट। क्लियर? और वही टाइम पे सेम रिसीव्ड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड हमें मेजर करना है विच इज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो टाइम पे आप ये यूज कर सकते हो। ओके, सो क्लियरली अंडरस्टैंड वेर यू कैन यूज दिस रे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइजन डिस्ट्रीब्यूशन। रे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब हमारा कम्युनिकेशन नॉन लाइन ऑफ साइट होगा। राइजन कब होगा? जब हमारा कम्युनिकेशन प्योरली लाइन ऑफ साइट, प्योरली तो नहीं बोल सकता है, एटलीस्ट एक चैनल हमारा अगर लाइन ऑफ साइट है तो हम यूज कर सकते हैं। रे लाइन देखते हैं, तो रे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको जनरली डायग्राम ऐसा दिखेगा। एम्पलीट्यूड, क्योंकि हम अलग अलग चैनल का अलग अलग जो सिग्नल आ रहा है उसके हम एम्पलीट्यूड एनवेलप मेजर कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब कि आपको रे लाइन फीडिंग का ग्राफ ऐसा दिखेगा, अलग अलग टाइम के हिसाब से एम्पलीट्यूड आपका वेरी होगा। ओके, बहुत ज़्यादा वेरी होगा। ओके, यू हैव टू टेक सम रेफरेंस वैल्यू, ओके, विच इज अगेन नॉन लाइन ऑफ साइट चैनल। तो मतलब अगर कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तो वो टाइम पे जब कभी भी लाइन ऑफ साइट नहीं है तब आप ये रे लाइन का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि टाइम के हिसाब से कैसा वेरी हो रहा है हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, इट्स क्लियरली विजिबल। रे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन हैज द probability डेंसिटी फंक्शन। ये पीडीएफ और सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये पीडीएफ और सीडीएम लास्ट सब्जेक्ट में हम देख चुके हैं डीकॉम में। ठीक है, पीडीएफ से आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिलेगा अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिसीव्ड सिग्नल। ओके, तो पीडीएफ यू कैन प्रोवाइड, जनरली वो प्रोबेबिलिटी ही दिखाता है डायरेक्टली, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हम नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू डिपेंड ऑन सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी थिंग्स। तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज पावर फॉर रिसीव्ड सिग्नल इज आर सिग्मा स्क्वायर e raised to minus r square to sigma square. The range is between 0 to infinite, and you will get received power is 0 whenever r is less than 0. Okay, for 0 to infinite you will have some equation, and for r, if r is a negative value, then you have a CR0. What is sigma square? Sigma square is the time average power of received signal before envelope detection. Okay, it represents the time average power before envelope detection.
और सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जनरली नॉर्मली स्क्वायर टर्म नहीं है. सिग्मा इज द RMS वैल्यू ऑफ रिसीव्ड सिग्नल बिफोर एनवेलप डिटेक्शन. Okay, clear about this PDF function of reline distribution? Okay, the probability that the envelope मतलब amplitude, the probability that the envelope of the received signal does not exceed a specified value R is given by the CDF. Okay, the reason provide कर रहा है कि CDF आपको कैसा मिलेगा. If your signal does not go beyond the value of R, then the signal is represented by PR, that is PR R less R summation of 0 to R received power. Okay, that is given by 1 minus e raised to minus R square upon 2 sigma square. ये है एग्जैक्ट CDF. CDF से आप डायरेक्टली क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन से आप डायरेक्टली एग्जैक्ट रिसीव पावर को मेजर कर पाओगे. ओके, R mean value and R median value is provided by this equation. Okay, and RMS value is again represented by this one. So like this you can measure the reline distribution. Again, keep in mind that reline distribution is used for non-line of sight. Whenever you don't have any channel which is non-line of sight, at that time you can use reline distribution. Clear? reline PDF, आपको PDF का ग्राफ, अगर जो ये इक्वेशन हमने देखे थे PDF के, अगर उसको मैं एज अ ग्राफ ड्रॉ करने जाऊं, सो इट विल समवॉट लाइक दिस. द मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू एंड वेरिएंस, ये सब आपको मिलेगा ऐसे. डीकॉम में हम ये सब मेजर करते थे, मीन, मीडियन एंड वेरिएंस. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा reline PDF. Now our next distribution, that is Raizen distribution. When there is a stationary or a non-fading LOS signal present, then the envelope distribution is Raizen. Okay, whenever you have at least one channel which is line of sight, if your other channels are non-line of sight, that's okay. So we will get exact reference value. ठीक है, और उनका जो एनवेलप डिटेक्शन है वो एकदम इजी रहता है. सो दैट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड राइजन. राइजन में जनरली आपको एक रेफरेंस के लिए एक चैनल एटलीस्ट मिलती है. द राइजन डिस्ट्रीब्यूशन डीजनरेट्स टू रे लाइन व्हेन डोमिनेंट कंपोनेंट्स फेड्स हो गए. ओके, रे लाइन और राइजन में दोनों में डिफरेंस इतना ही है. राइजन से आपको रे लाइन करना है, तो अगर आपका ये सिग्नल जो रेफरेंस सिग्नल है लाइन ऑफ साइट वाला, अगर वो चला जाएगा तो राइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज अ रीलाइन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ राइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर बीइंग सेम एज राइजन डिस्ट्रीब्यूशन, रीलाइन डिस्ट्रीब्यूशन. द PDF of Raizen distribution is given by this equation. Okay, PDF of reline distribution that we have seen earlier slides. Okay, और Raizen distribution जो हमारा है वो कैसा लगेगा आपको? अलग अलग वेरिएंस आपको मिलेंगे अलग अलग वैल्यूज के लिए. ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन हैव अ ग्राफ ऑफ PDF. ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको ऐसे मिलता है. समझ में आ गया? सो दिस इज द PDF ऑफ Raizen distribution. Okay, this is the last slide of this chapter. Now we have main unit, that we have unit 4, जो हमने देखा कि लार्ज स्केल फेडिंग और स्मॉल स्केल फेडिंग. लार्ज स्केल फेडिंग जनरली हम आउटडोर, जहाँ कहीं पे भी हमें लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन चाहिए, तो उसका मेजरमेंट के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल
multipath component or multipath communication or small scale multipath communication that is used for a indoor communication. ठीक है, तो होप ये चैप्टर आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा, एग्ज़ाम में आपको वेरी मच हेल्पफुल रहेगा. अगर कोई भी क्वेरी है आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी our actual architecture, you can say that we are using currently, GSM architecture, वो हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा GSM आर्किटेक्चर स्टडी. क्लियर अबाउट दिस लेक्चर? ओके, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.